Bismillahirrahmanirrahim. Let's start lecture number 6, linear regression with multiple variables. Last time we looked at आगे आ जाएं आप जो पहली जो रो है ना आगे बैठ जाएं और पिछली रो भी आगे आ जाए. Last time we looked at yesterday we looked at linear regression with one variable, right? If you remember, today we are going to look at the multiple variables. So last time this was the case. We had, and first of all, just to revise or recap, last time also we looked at the regression problem. Regression problem क्या होता है कि जिसमें आपका जो y है, it is the target variable is continuous and not discrete. अगर discrete है तो उस problem को हम क्या कहते हैं? Classification, right? So this is regression problem. And what we did last time was that we studied the linear regression with one variable, means के जो आपका x है, it has only one dimension. So you have to predict the y given one scalar value of as input. Now we are going to look at multiple variables, which means कि अभी आपके पास x1 एक feature होगा, x2 feature होगा, 3, 4, they can be multiple. So this is the situation right now. Okay, now you have, for example, this is x1, the first feature. So we are going to denote the different features by using the subscript. ठीक है, x subscript 1 as x sub 2, x sub 3, they are the different features of the input. और अगर superscript से हम जो है क्या denote करते हैं? सर लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन था. The superscript से हम show करते हैं the example number. जैसे for example x2 will refer to the second example. Okay, yes, any question from online class? लास्ट लेक्चर में हमने इनिशियल पॉइंट कैसे लिया था? ग्रेडियंट से हम सेट तो कर रहे थे लेकिन वो इनिशियल लाइन. क्वेश्चन है कि लास्ट लेक्चर में व्हेन वी वर लुकिंग एट ग्रेडियंट डिसेंट तो इनिशियल पॉइंट कैसे लिया था? तो इनिशियल पॉइंट बेसिकली आपने रैंडमली चूज कर लिया था. You may start from 0, 0 or from any randomly initialized theta parameters. Okay. Okay, so let's get back to this lecture. x1, this is x2, this is x3, this is x4, and this is y. So some notation again. Okay, now we're going to refer to the number of features है कितने आपके पास columns हैं. We are going to denote it by n. So m is the number of examples, or n is the number of features that you have in each example. For example, in this case, n is 4 and m is also 4 if we just consider कि आपके पास 4 examples हैं. Okay, superscript means the ith training example, and j, which is the subscript, it means the jth feature of the ith training example. Okay, so whenever I say 3, 2, it means I am referring to the third example, so which is this one, and I am referring to the second feature, which is 3. So x3, 2 is 3. Okay, so just some notations which we are going to use later on. Okay, so this was the hypothesis in the case of linear regression with one variable. इसमें तो कोई सबको क्लियर है, राइट? ये हमने कल इन डिटेल पढ़ा था. इसमें आपके पास ये था y इंटरसेप्ट और ये था स्लोप, अगर हम लाइन की बात करें तो, और इसको हमने बायस भी कहा था जो पहला आपके पास टर्म है. तो वी कॉल दैट द बायस टर्म. नाउ आपके पास चूंकि जो फीचर्स हैं वो बढ़ गए हैं तो आपका हाइपोथेसिस भी उसके लिहाज से अकॉर्डिंगली चेंज होंगे. तो नाउ योर हाइपोथेसिस इज थीटा 1 x1, तो यहाँ 1 होना चाहिए था, यहाँ मैंने 1 नहीं लिखा. सिमिलरली 2 थीटा 2. ठीक, जितने आपके फीचर्स हैं 2 हैं तो यही आपका होगा हाइपोथेसिस. 3 है तो आपके पास 3 हो जाएंगे, और टोटल हमने कहा था कि n आपके पास फीचर्स हैं, तो दिस इज दी जनरल फॉर्म. ठीक है, तो अभी आपके पास हाइपोथेसिस इस तरह का हो गया. तो जो पैरामीटर्स हैं उसका डायमेंशन क्या होगी? n. So what is the size of this vector theta? n plus 1. ठीक है, n, और क्योंकि आपके पास थीटा 0 भी है तो
22 टर्म भी है, तो टोटल आपके पास साइज क्या है इस वेक्टर का n+1। सो नाउ यू हैव टू एस्टिमेट n+1 पैरामीटर्स। इससे पहले आपके पास लास्ट क्लास में से 2 पैरामीटर्स थे, θ0 एंड θ1। नाउ यू हैव n+1 पैरामीटर्स दैट यू हैव टू एस्टिमेट, जो कि डिफाइन करेंगे एक लाइन को। आई मीन इट इज स्टिल अ लाइन, या इसको आप कह लें कि इट्स a plane or a hyperplane in high dimension, but it is still, you know, something flat in जो जिसको आप predict कर रहे हैं। Okay, and usually in order to make our lives easier in terms of writing it down, what we do is we use vector notation. तो θ1, θ0, θ1, θn के बजाय हम इस सब पैरामीटर को इकट्ठा, जैसे मैंने अभी लिखा था, एक वेक्टर की फॉर्म में लिख देंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम θ0 टू θn। सो दिस इज माय वेक्टर थीटा विच कंटेन्स ऑल दी पैरामीटर्स। तो इसी तरह हम x को, जो इनपुट है, उसको भी इसी तरीके से हम एक वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं भी इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देंगे, कोई बोल्ड कर देंगे, ठीक है, जस्ट टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द इंडिविजुअल जो आगे पैरामीटर्स हैं। So this is now a vector, or it consists of x1, x2 to xn, ठीक है। इसका साइज क्या है, n+1 टाइम्स 1। इस वेक्टर का साइज क्या है, n×1, राइट, क्योंकि इसमें x0 तो कोई नहीं है। लेकिन जस्ट टू मेक देम कंसिस्टेंट, कि वो एक ही उसकी लेंथ के हो, हमारे लिए आसानी हो जाए, या लेट्स फर्स्ट डिस्कस दिस कि अगर आप मल्टीप्लाई करें दो वेक्टर्स को, मल्टीप्लाई मीन इफ यू डू द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, या इन टर्म्स ऑफ दीज वेक्टर्स यू टेक द डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल व्हाट इज दैट। So now these two are vectors, theta is also a vector and x is also a vector. Can you multiply them? वो क्यों? क्योंकि आपके साइज बराबर नहीं है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू डू दैट, क्या हम मल्टीप्लाई कर लें, वी आर गोइंग टू ऐड a 1 here फॉर द वेक्टर x, ताकि इसका डायमेंशन भी आपका बराबर हो जाए। अभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली व्हेनेवर यू टेक द डॉट प्रोडक्ट, इट इज इक्वल टू x ट्रांसपोज x, राइट। तो x ट्रांसपोज का मतलब है इस वेक्टर को आप ट्रांसपोज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इस वेक्टर से, विच मीन्स के θ0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, आप θ1 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, इन सब को मल्टीप्लाई करके आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, विच इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव रिटन हियर। θ0 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, θ1 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, θn x से मल्टीप्लाई हो रहा है, आप उनको फिर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू यूज दिस नोटेशन के this hypothesis will be written as theta dot x, which means के दोनों वेक्टर हैं और आप इन दोनों का आपस में इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, जिसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि थीटा ट्रांसपोज x। रिमेंबर व्हेनेवर वी डू दैट, तो x इज नाउ इट्स अ वेक्टर जिसमें आपने एक 1 अपेंड किया हुआ है, ठीक है, उसका साइज आपने फिर n+1 ही किया है। यू हैव दिस टर्म जो कि आपने ऐड किया है, उसका फायदा ये है कि वो टर्म θ0 से मल्टीप्लाई होगी, तो इट विल नॉट अफेक्ट द फाइनल हाइपोथेसिस, क्योंकि यहाँ भी आपका वही सिचुएशन है कि θ0 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, θ1 को x से कर रहे हैं, एंड सो ऑन। So this is what we are going to do, and this is my hypothesis now in case of multivariable linear regression। और चाहे वो लीनियर रिग्रेशन इन वन वेरिएबल हो, तब भी आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। किस तरीके से आप θ0 θ1 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 और x। तो इसलिए दिस इज अ जनरल फॉर्म, जो कि आप चाहे कोई 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स हैं, 3 है, 100 है, 1000 है, तो वी कैन यूज दिस नोटेशन टू राइट दी हाइपोथेसिस। इट इज स्टिल लीनियर, इसमें कहीं भी आपके पास कोई पैरामीटर का आप स्क्वायर नहीं ले रहे, स्क्वायर रूट ही ले रहे, हायर पावर नहीं ले रहे, सिर्फ उसकी पावर 1 ही है, तो स्टिल दिस इज ए लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, नाउ वी आर अगेन गोइंग टू यूज ग्रेडियंट डिसेंट टू फाइंड द पैरामीटर्स। ये जो आपके सारे पैरामीटर्स हैं, इन सब को आपने करना है
कि ये व्हाट आर दोस पैरामीटर जो डिफाइन करते हैं उस प्लेन को, तो उसको अगेन वी आर गोइंग टू यूज दी ग्रेडियंट डिसेंट। तो दिस इज द सिचुएशन कि आपका हाइपोथेसिस है ये फंक्शन, इसके पैरामीटर आप दिया जो पैरामीटर इनको आपने डिफाइन करना है यूजिंग द कॉस्ट फंक्शन जो हमने लास्ट टाइम डिफाइन किया था। इस द कॉस्ट फंक्शन रिमेन सेम। दिस इज योर प्रेडिक्शन माइनस ट्रू वैल्यू स्क्वायर लिया आपने फॉर सम किया फॉर ऑल ट्रेनिंग एग्जांपल्स एंड देन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एग्जांपल्स, और साथ 2 को इसलिए किया ताकि लेटर ऑन जब आप इसका ग्रेडियंट लें तो वो कैंसिल आउट हो जाए 2 के साथ। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? और एग्जैक्टली सेम अप्रोच हमने पहले 2 पैरामीटर से, तो उस टाइम पे आपके पास हर इटरेशन में आपने 2 अपडेट्स करनी थी। अब के केस में अगर आपके पास लेट्स से एक्स की 3 डायमेंशन हैं, 3 फीचर्स हैं, तो कितने आपको हर इटरेशन में अपडेट करने होंगे थीटा पैरामीटर्स के? तो क्या टोटल थीटा पैरामीटर्स कितने होंगे? हाँ जी, कितने होंगे? n+1। n+1। तो अगर 3 है तो 4 आपके पैरामीटर होंगे, ठीक है। तो थीटा 0, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। आई एम गिविंग यू एग्जांपल कि अगर आपके पास सिर्फ 3 फीचर्स हैं तो उस केस में एट ईच इटरेशन यू हैव टू अपडेट थीटा 0, थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3, और उसको अपडेट आपने इसी इक्वेशन से करना है कि थीटा 0 माइनस अल्फा रेट ऑफ चेंज ऑफ j विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0, नीचे आ जाएगा थीटा 1, थीटा 2 and 3, and the derivative last time we also calculated कि सिर्फ जब आपका थीटा 0 है उस टाइम पे you get the situation ठीक है। ये आपका थीटा 0 का डेरिवेटिव है और ये रेस्ट ऑफ द डेरिवेटिव, बल्कि आप चूंकि आप वी आर कॉलिंग x, दिस इज माय x which is x1 x2 to xn, so we may call the first element x0 which is always x0 क्या, it is always 1। तो इसलिए जो डेरिवेटिव इज एसेंशियली दिस कि पहले केस में x0 के केस में इट विल बी 1, बाकी सब के केस में व्हाटएवर दैट फीचर है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव को, ठीक है। रिमेंबर ये हमने कल किया था इन डिटेल, ये सबको क्लियर है ना ये यहाँ तक? इज इट क्लियर टू ऑल? ये आप सबसे पूछ रहा हूँ जो आप बैठे हैं ऑन इधर आज फेस टू फेस बैठे हैं, इज इट क्लियर? ओके देन और ये भी आपने करना है साइमल्टेनियस अपडेट ऑनलाइन क्लास। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? साइमल्टेनियस अपडेट अगेन लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, एक इटरेशन में आपने अगर थीटा 0 को अपडेट कर दिया है तो फॉर थीटा 1 एंड थीटा 2 एंड सब्सिक्वेंट थीटास आपने उन वैल्यूज़ को यूज़ नहीं करना, वो आप यूज़ करेंगे इन द नेक्स्ट इटरेशन, ठीक है। सारे आप कर देते हैं, व्हेन यू गो टू द नेक्स्ट इटरेशन देन यू यूज़ द थीटा वैल्यूज़ जो कि पिछली इटरेशन में अपडेट हुई हैं, ठीक है। तो ये आपने करना है साइमल्टेनियस अपडेट ऑफ ऑल द थीटा वैल्यूज़, थीटा पैरामीटर्स। ओके अगेन एनी क्वेश्चन? नहीं है तो फिर आपका जो अभी आज फेस टू फेस है, मैं आज क्विज ले सकता हूँ इसी टॉपिक से जो हमने पढ़ा है अभी, ठीक है। क्योंकि इसके बाद से जो फेस टू फेस इनको भी और ऑनलाइन भी वी विल हैव क्विज ईच वीक, और चूंकि आप फिर ऑल्टरनेट आ रहे हैं तो हर क्लास में आपका बेसिकली क्विज होगा, और जो हम उस दिन पढ़ रहे हैं या उससे पहले पढ़ा हुआ है वी कैन हैव क्विज फ्रॉम एनी लेक्चर, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। आज तो हम आपका लेंगे जो लेक्चर 2 and 3 डिसेंट्री नाइव वेव में से, लेकिन इसके बाद से जो है यू शुड बी प्रिपेयर्ड। कोई क्वेश्चन है अभी पूछें और इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा इसे पीछे रहना शुरू कर देंगे क्लास से, वी आर गोइंग एट अ फास्टर पेस, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू कवर जो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। तो इसलिए यू हैव टू बेसिकली गो अलॉन्ग विद मी, ऐसा नहीं है कि आप कहें चलें जी अगले हफ्ते पढ़ लेंगे, साथ साथ आपने करना है तो चलेंगे, अदरवाइज फिर आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है। ओके अगेन एनी क्वेश्चन?
ये एग्जैक्टली वही ये कंटेंट है जो कल हमने पढ़ा है, सिर्फ आपका डायमेंशन चेंज हो गई है। लास्ट टाइम कल हमारे पास एक फीचर था, आज आपके पास मल्टीपल फीचर्स हैं, तो बट रेस्ट everything is almost similar. One problem that you may encounter when you have multiple features is that of feature scaling. And let me explain the problem. For example, if you consider again the same case, ये आपके पास मल्टीपल फीचर्स हैं, ठीक है। कि इससे पहले कल की क्लास में ये आपको गिवन था विच वाज y, और आपको सिर्फ गिवन था साइज ऑफ द हाउस विच वाज x, ठीक है। आज हमने कह दिया कि x1 भी गिवन है, साइज भी गिवन है, नंबर ऑफ बेडरूम्स भी गिवन है, नंबर ऑफ फ्लोर्स भी गिवन है, एंड एज ऑफ द हाउस भी गिवन है। बट यू कैन इजीली सी कि जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी उनमें वेरिएशन है, इन द सेंस के साइज़ तो आपका 2000, 4000, 5000 तक भी जा सकता है किसी घर का, लेकिन नंबर ऑफ बेडरूम्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा तो मुश्किल है। इसी तरह नंबर ऑफ फ्लोर्स भी एक घर के 2-3 तक ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। एज ऑफ द हाउस का भी एक की जो वेरिएशन है वो भी मे बी 100 तक भी जा सकती है। तो ये जब आपके व्हेन यू हैव मल्टीपल फीचर्स देन यू हैव टू पे अटेंशन टू दिस ऑल्सो कि एक फीचर की वैल्यूज़ का जो रेंज है वो डिफरेंट है दूसरे फीचर की रेंज से। तो what will be the effect of this on your algorithm? उसका क्या इफेक्ट होगा कि इसका मे बी इस फीचर का ज़्यादा जो एल्गोरिदम है वो उसको ज़्यादा देना शुरू कर दे सिग्निफिकेंस, क्योंकि जहाँ एक 4 वैल्यू हो, यहाँ 4000 वैल्यू हो, तो इनमें हैपन कि वो इसको समझे कि ये दे आर समहाउ रिलेटेड हो, उसको ज़्यादा वैल्यू, उसको ज़्यादा सिग्निफिकेंस देना शुरू कर दे किसी एक फीचर को। तो व्हाट वी वांट टू डू इज़ कि इन सबको किसी एक स्केल पे लाया जाए, एक ही, ताकि एक ही तरीके से जो एल्गोरिदम है इन सबको वो इम्पोर्टेंस दे। ऐसा ना हो कि एक फीचर को बिल्कुल ही इम्पोर्टेंस ना दे, दूसरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। और दूसरा प्रॉब्लम आता है जब आप ग्रेडिएंट डिसेंट अप्रोच अप्लाई करते हैं, उस टाइम पे भी यू कैन एंड अप इन दिस प्रॉब्लम कि जो आपका बनता है जो हमने कल भी ये देखा था, कॉन्टूर प्लॉट ऑफ द कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू θ1 एंड θ2। अगर लेट्स से दो ही फीचर्स हैं, एक फीचर की वैल्यू जो है वो इट गोज इनटू इज द साइज ऑफ द हाउस, द अदर वन इज द नंबर ऑफ बेडरूम्स। If you use these two features which have different ranges, then you may end up in the during the gradient descent also. उसमें ये होगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर यहाँ हम ग्रेडिएंट डिसेंट अप्लाई करेंगे तो जो आपकी ऑप्टिमाइजेशन होगी इट मे टेक लॉन्गर, कि वो एक डायमेंशन में तो जल्दी से पहुँच गया ऑप्टिमम तक, लेकिन दूसरी डायमेंशन में it has to move along longer path, और वो आपको टाइम लग सकता है to go to the optimal value for that parameter. तो what we want to do is कि θ1 θ2 को हम इस तरीके से नॉर्मलाइज करें कि दोनों का जो वैल्यूज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाए, ताकि हमें जो मिले लैंडस्केप टू ऑप्टिमाइज वो मोर और लेस एक तरह की ये दोनों फीचर में, या मल्टीपल फीचर हैं तो सब फीचर, ठीक है। तो in order to avoid that we normalize the features, and the way we normalize is called, one of the technique is called the mean normalization or standardization. What we do is कि हर फीचर का there is some mean value. For example, अगर हम हाउस की बात करें, साइज की बात करें, तो अगर आपके पास साइज है 1000 है, 2000 है, 3000 है, 4000 भी है, तो मे बी 2500 में बी द मीन साइज ऑफ द हाउस। एक तो पहले हम कंप्यूट करेंगे हर फीचर का मीन, ठीक है। उसके बाद वी आर गोइंग टू कंप्यूट दी स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज़ द स्प्रेड अराउंड दैट मीन लोकेशन। कितना, अगर मीन 2500 है तो कितना उस पर स्प्रेड है, मिनिमम क्या वैल्यू है, मैक्सिमम क्या वैल्यू है, तो वी आर गोइंग टू फाइंड दैट स्प्रेड ऑल्सो। So once we have done that, then we are going to use this formula to compute the normalization. कि हर
फीचर से हमने माइनस करना है उसकी मीन वैल्यू और डिवाइड करना है उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट विल बी कि वो आपका जो वैल्यूज़ हैं और ऑल फीचर्स दे विल बी बिटवीन -0.5 टू 0.5। ये तो ज़ीरो मीन भी उनका हो गया, सेकेंडली उनकी जो रेंज है वो भी विद इन -0.5 टू 0.5 आ गई सारे फीचर्स, ठीक है। इसको लेके हम फिर ट्रेनिंग करेंगे। There are other methods of normalization also, but and I mean in all libraries जो कि मशीन लर्निंग की हैं उनमें वो सब होती हैं implemented different algorithms for normalization, but this is one of the techniques जो कि हम इसमें पढ़ते हैं। There are other also min max, जिसमें आप max min max कंप्यूट करके उसकी मदद से आप normalize करते हैं। तो मतलब सारे यूज होते हैं, but we are studying this one which is the mean normalization or standardization। जी मीन ज़ीरो तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन इट इज़ ऑल्सो गुड। मीन ज़ीरो का फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि एक फ़ायदा तो स्ट्रेट अवे ये होगा कि आपका एक पैरामीटर की लर्निंग आपकी कम हो जाएगी। तो थीटा ज़ीरो है बेसिकली, विच इज़ दी बायस टर्म, और वो क्या फाइंड करता है? देखिए अगर आपके डाटा पॉइंट्स इस तरह के हैं, इस पे अगर आप इफ़ यू जस्ट ट्राई टू डू मीन नॉर्मलाइजेशन, तो किस तरीके से आपके डाटा पॉइंट्स चेंज होंगे? वो आपके कहीं यहाँ के एड्रेस से लेंगे, राइट? क्योंकि आप मीन नॉर्मलाइज कर रहे हैं तो आपका मीन ये बनता है, एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में ये बनता है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे सारा आपका डाटा पॉइंट नीचे आ जाएंगे। इसकी वजह से यू नो कि आपको अगर थीटा ज़ीरो ज़ीरो भी रखे उसको ना भी फाइंड करें तो यू नो कि लाइन यहीं से गुजरनी है, सेंटर से, ऑरिजिन से। यू जस्ट हैव टू फाइंड दी स्लोप। एक तो इमीडिएट आपको ये फ़ायदा नज़र आ रहा है कि आपको एक पैरामीटर कम फाइंड करना पड़ता है। लेकिन दूसरा जो हम मेन जिस वजह से ये मीन नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं वो ये है कि आपकी स्केलिंग हो जाए। मेनली यहाँ स्केलिंग का इशू है कि एक जो फीचर है वो सिलेक्ट से साइज़ है, उसकी रेंज 0 से 2000 है। दूसरा फीचर है नंबर ऑफ हाउस, उसकी रेंज 1 से 5 है, नंबर ऑफ बेडरूम सॉरी। तो अब दोनों का इफेक्ट ग्रेडियंट डिसेंट के ऊपर डिफरेंट होगा भी, और दोनों इसकी वजह से आपका जो ऑप्टिमाइजेशन रूटीन है उसको लर्निंग में प्रॉब्लम होगी। इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर टू ऑल कि देखिए हमने यहाँ शो भी किया है। तो इसलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर टू प्री प्रोसेस एंड नॉर्मलाइज योर फीचर्स कि सब एक ही रेंज में आ जाए, ताकि किसी एक फीचर की ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना हो, ना ही ऑप्टिमाइजेशन में, ना ही इन जनरल आपके जो फाइनल आपकी प्रेडिक्शन होगी उसमें। तो दिस इज़ व्हाई वी डू दैट। अच्छा, ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि हाउ डू वी चूज द लर्निंग पैरामीटर अल्फा, व्हिच इज द लर्निंग रेट। तो बेसिकली इट इज़ द वे वी डू दैट इज़ के आपका जो एरर है व्हेन एवर यू आर रनिंग ग्रेडियंट डिसेंट, यू नो कि अगर आप सही इम्प्लीमेंट आपने किया हुआ है और सही काम कर रहा है, तो एट ईच टाइम स्टेप योर कॉस्ट मस्ट डिक्रीज, अदरवाइज वो काम सही नहीं कर रहा, राइट? क्योंकि हमने यही लास्ट में डिस्कस किया था कि यू गो इन दी डायरेक्शन जहाँ आपकी कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। अगर कॉस्ट डिक्रीज नहीं हो रही तो आपका ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच सही काम नहीं कर रहा, मे बी आपका लर्निंग रेट गलत है। तो दिस इज़ वन वे ऑफ चेकिंग कि आपका लर्निंग रेट ठीक है या नहीं है, कि यू प्लॉट दी कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ इटरेशन। अगर आप इस तरह का आपको कर्व मिल रहा है कि जिसमें डिक्रीज हो रहा है आपकी कॉस्ट, देन यू कैन से कि आपका जो लर्निंग रेट है वो ठीक है, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो मे बी योर लर्निंग रेट इज़ रॉन्ग, या आपकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई और प्रॉब्लम है, तो देन यू हैव एन इशू। फॉर एग्जांपल आपका जो कॉस्ट है इंक्रीज़ कर रही है, तो मे बी आपका जो अल्फ़ा है इट इज़ टू बिग, इसको आपको डिक्रीज़ करने की ज़रूरत है। या यू मे एंड अप गेटिंग अ कर्व लाइक दैट कि वो डिक्रीज़ इंक्रीज़ कर रहा है, तो देन ऑल्सो यू मे हैव अ लार्ज और बिग अल्फ़ा एंड यू नीड टू मेक इट स्मॉल। Usually what we do is we start from a very small value and try to increase it in maybe 0.01, 0.1, 0.1, or अच्छा 1 तक तो हम जाते 0.1 should be here,
0.001 0.01 एंड और जहाँ हम समझते हैं कि ठीक है अब ये यहाँ से आपका ना ही बहुत छोटा है ना ही बहुत बड़ी वैल्यू है इसकी, देन यू यूज दैट इन योर ट्रेनिंग। ठीक है, तो एसेंशियली इट्स हिट एंड ट्रायल। आप मल्टीपल वैल्यूज चूज़ करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम लो वैल्यू और फिर देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू आपको ठीक आंसर देगी। Okay, so last time we discussed the batch gradient descent. तो batch gradient descent क्या होता है? At each time step you look at or you use all your training examples to compute the gradient. Okay, let me again write your gradient here. This is your gradient with respect to theta, any theta parameter. कि आपके पास आता है 1 divided by m, and you have I goes from 1 to m. Here you have f of x I minus y I, and you multiply that with x I subscript j. Subscript j क्यों लिखा है आपने? क्योंकि you are computing it with respect to the jth feature. तो j 0 है तो यहाँ भी आपका x 0 आ जाएगा। x 0 हर फीचर का आपका 1 है तो 1 आ जाएगा। लेकिन अगर आप कंप्यूट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से 2, तो इस जगह पे आप मल्टीप्लाई करेंगे x 2i से, यानी कि हर i एग्जांपल के जो सेकंड फीचर है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू टेक द सम. So what I'm saying here is in order to compute this gradient, you have to use all m training examples at each iteration and then update your theta parameter. ठीक है, ये सबको क्लियर है? तो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस, कल भी हमने डिस्कस किया था कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि इट इज़ वेरी स्लो. यूजुअली आजकल यू हैव द डेटा सेट विच इज़ क्वाइट लार्ज, तो m इज़ यू कैन हैव मे बी 1 मिलियन. उस केस में आपको 1 मिलियन सबमिशंस करनी होंगी फॉर ईच फीचर हर इटरेशन पे, और फिर आप एक अपडेट करेंगे और टू फाइंड अ करेक्ट वैल्यू ऑफ थीटा पैरामीटर्स इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. So this is the disadvantage of batch gradient descent. So instead what we can do is to move this जो समेशन है इसको आप फॉर लूप में मूव कर दें, यहाँ से निकाल दें. ठीक है, इसको निकाल के आप क्या कर सकते हैं, लेट मी रिमूव दिस, फिर m को भी निकाल देंगे हम यहाँ से. ठीक है, ये और यहाँ उसके बजाय आप फॉर लूप लगा दें, फॉर i goes from 1 to m. कि आपने हर एग्जाम्पल के लिए नाउ यू हैव टू परफॉर्म दिस स्टेप. ठीक है, ये हर एग्जाम्पल के लिए एक ग्रेडियंट कंप्यूट होगा जो कि अप्रॉक्सीमेशन होगी टू द ट्रू ग्रेडियंट, लेकिन बहरहाल हम ये करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू अपडेट द पैरामीटर. फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आएंगे और अपडेट करेंगे. तो बस दिस इज़ व्हाट इट इज़. ठीक है, यहाँ से आपने इसको निकाल दिया. दिस इज़ योर इसको हम कहते हैं क्या, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट. कि यहाँ से हमने समीशन निकाल दिया और वी जस्ट एडेड दिस फॉर लूप, ताकि हम हर जब एक दफ़ा आप पूरे ट्रेनिंग सेट से गुजरेंगे तो जितने आपका ट्रेनिंग एग्जाम्पल थी उतने आप अपडेट्स कर चुके होंगे आप अपने थीटा पैरामीटर में. जी क्या नहीं हो जाएगा अनस्टेबल. ठीक है, द क्वेश्चन इज कि क्या स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट इज इक्वल टू बैच ग्रेडियंट डिसेंट. एक्चुअली तो दिस इज द एक्यूरेट वे कि ये एग्जैक्ट तो वैल्यू आपको ये देगा. दिस इज़ नॉट एक्यूरेट, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस ये आपको अप्रॉक्सीमेटली सही आंसर देता है. ठीक है, वो आपकी बात सही है कि मे बी एट वन एग्जाम्पल इट मे गो लीड यू इनटू अ रॉन्ग डायरेक्शन, बट इवेंचुअली जब सारे एग्जाम्पल को आप देखेंगे तो वो आपको सीधी डायरेक्शन में लेके जाएगा. तो अगर आप इसका ड्रॉ करने की कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल इसी में यहाँ चलें ड्रॉ करने की कोशिश कर देता हूँ. अगर आप इसको जो हमारे पास कॉन्टूर प्लॉट था उस पर अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यू गोइंग टू ऑब्जर्व समथिंग लाइक दैट. लेट्स से कि ये आपके पास कॉन्टूर प्लॉट है, दिस इज द ऑप्टिमम. यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो बैच ग्रेडियंट डिसेंट में टेक यू लाइक दिस.
तो ये आपको थोड़ा सा आपको यूँ करके लेके जाएगा, लेकिन चूँकि ये हर टाइम हर एग्जांपल पे आपको पे अपडेट लेके कर रहा है, तो इट इज़ गोइंग टू गो टू द ऑप्टिमम मच क्विकर देन बैच ग्रेडियंट डिसेंट. एंड सेकेंडली इट मे नॉट एग्जैक्टली टेक यू टू द ऑप्टिमम, क्योंकि ये एग्जैक्ट तो नहीं है, बट इट विल बी अराउंड इसी एरिया में ही होगा कि आपको अप्रॉक्सीमेटली ठीक आंसर दे देगा. ठीक है. Okay, so with that we finish the lecture, and we have one topic remaining जो कि हम next class में पढ़ेंगे, which is normal equation. अभी online class can leave and the face to face will have a quiz. Any question before we sign off?